રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતી માહિતી પાકિસ્તાનના એજન્ટને મોકલી આપનાર ઈસમની ધરપકડ કરતી ગુજરાત એટીએસ. ગુજરાત એટીએસના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર આર ગરચનાઓને ગુપ્ત બાતમી મળેલ કે પંકજ દિનેશભાઈ કોટિયા રહેવાસી કેકેનગર લાલાભાઈ ઘંટીવાળાની બાજુની શેરીમાં બોખીરાવાડો પોરબંદરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોઈ પાકિસ્તાની આર્મી કે જાસૂસી સંસ્થા આઈએસઆઈના કોઈ અધિકારી કે એજન્ટ સાથે સંપર્કમાં છે અને પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડ જેટી તથા જેટી ઉપરની ભારતીય કોસ્ટગાર્ડની બોટો અંગેની સંવેદનશીલ માહિતી પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મથી મોકલી આપેલ છે અને તે માટે આર્થિક લાભ પણ મેળવે છે. સદર બાતમી હકીકત બાબતે એટીએસ ગુજરાત વરિષ્ઠ અધિકારીઓને જાણ કરાતા તેઓની સૂચના મુજબ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વી.કે. પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉપરોક્ત ઈસમ પંકજ કોટિયાને પૂછપરછ અર્થે એટીએસ ગુજરાત અમદાવાદ ખાતે બોલાવવામાં આવેલ, જેની પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળેલ કે તે તમાકુ પેકિંગનું કામકાજ કરે છે અને તેમજ છેલ્લા એકાદ વર્ષથી કેટલીક વખત પોરબંદર જેટી ઉપર કોસ્ટગાર્ડની શિપ ઉપર વેલ્ડિંગ તથા અન્ય પરચુરણ મજૂરી કામ હેલ્પર તરીકે કામ કરવા જાય છે. આથી આશરે 8 માસ પહેલાં તે રિયા નામ ધરાવતી એક ફેસબુક પ્રોફાઇલ સાથે સંપર્કમાં આવેલ છે. પોતે મુંબઈની એક મહિલા હોવાનું અને પાકિસ્તાન નેવી માટે કામ કરતી હોવાનું જણાવી આ રિયા ફેસબુક પ્રોફાઇલ ધારકે પંકજ કોટિયા સાથે વોટ્સએપના માધ્યમથી સંપર્ક કરેલ અને પૈસાની લાલચ આપી ઉપરોક્ત ઈસમ પાસેથી પોરબંદર જેટી ઉપર હાજર હોય તેવી શિપના નામ, કોસ્ટગાર્ડના શિપના લોકેશન સહિતની માહિતી માગેલ હતી. તે મુજબ આ પંકજ કોટિયાનાઓએ છેલ્લા 8 માસ દરમિયાન પોરબંદર જેટી ઉપર હાજર હોય તેવી કોસ્ટગાર્ડની શિપના નામ વગેરે લખી વોટ્સએપના માધ્યમથી રિયાને મોકલી આપેલ છે. આ માહિતી મેળવવા બદલ ફેબ્રુઆરી 2024થી આજ દિન સુધીમાં ટુકડે ટુકડે આ રિયા નામની મહિલાએ 26,000 અલગ અલગ યુપીઆઈથી પંકજ કોટિયાને એકાઉન્ટમાં જમા કરાવેલ છે. ગુજરાત એટીએસના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વી.કે. પરમારના માર્ગદર્શન મુજબ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર આર ગરચર તથા વાયરલેસ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભૌમિક પટેલના દ્વારા ઉપરોક્ત માહિતીની ખરાઈ કરતા તેમાં તથ્ય હોવાનું જાણવા મળેલ. વધુમાં રિયાએ પંકજ કોટિયાના સાથે ચેટ કરેલ વોટ્સએપ એકાઉન્ટ પાકિસ્તાનથી ઓપરેટ થઈ રહેલ હોવાનું ખુલવા પામેલ છે. આ પ્રકારની સંવેદનશીલ માહિતી જો પાકિસ્તાન જેવા દેશ માટે જાસૂસી કરી રહેલ એજન્ટને મળે તો તે ભારત દેશની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને આંતરિક સલામતી માટે જોખમરૂપ સાબિત થઈ શકે તેમ છે. જે બાબત ધ્યાને લઈ ઉપરોક્ત માહિતી તથા પુરાવા આધારે પંકજ કોટિયા અને પાકિસ્તાની મહિલા એજન્ટ રિયા દ્વારા ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના રિસોર્સિસ અંગેની માહિતી ગેરકાયદેસર રીતે નાણાકીય વળતર મેળવી આપલે કરેલ હોય તેઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા કલમ 61 તથા કલમ 148 મુજબ ગુજરાત એટીએસ ખાતે ગુનો રજીસ્ટર કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. इस केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनियज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज कोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जो बात किया था उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है. तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, जिसका किस इन्फॉर्मेशन देता था ये इसमें हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था. इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया. इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है. उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया. आरोपी का नाम है पंकज कोटिया, वह तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है रोल करने का.
સર કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कांटेक्ट में आया था, फरवरी मार्च में आया था और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के। तो सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हनी ट्रैप है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है या फिर नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली, ये कंप्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए, तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना ही पता चला कि ये भेजता था, जो बाकी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2-3 अलग तरीके से हम देख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लीड नहीं। सर अभी पाकिस्तान गया हो या ऐसा कुछ मूवमेंट मिला है? नहीं, ये इंडियन है और पाकिस्तान अभी तक इसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। तभी ये की माहिती या दूसरे कुछ एजेंसी की भी माहिती दे रहा था? कोस्ट गार्ड का शिप्स का जो मूवमेंट है और वहाँ पोरबंदर में जो डॉक है उसका नाम માહિતી भेजता है। માહિતી કેવી રીતે એકત્રિત કરતો હતો અને આ જે માહિતી લીક કરવાથી કેટલું નુકસાન થઈ શકે? ऑब्वियसली अगर हमारे शिप्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इंफॉर्मेशन उनको पता चले। लेन-देन क्या होती थी सर? 26,000 इनके बैंक अकाउंट में लास्ट 5 to 8 मंथ्स में इनके बैंक अकाउंट में अलग-अलग 2,000, 3,000, 4,000 हिसाब से इनको आया गया 11 अलग ट्रांजैक्शन। सर फिशिंग बोट में कहीं गया हो मिड सी में या वहां पे कुछ ऐसा सिक्का ये कोस्ट गार्ड या और एजेंसी की कुछ तस्वीरें कुछ भेजी हो ऐसा कुछ है? एज ऑफ नाउ ऐसा इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया, पर उस तरीका भी हम देखेंगे। दोनों के बीच बातचीत माध्यम से हुई। व्हाट्सएप में मेजॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है, हिंदी में ही बात करते थे पर टाइप करते थे इंग्लिश। सर ये दोनों ने जो डिटेल दी है, फोटो वीडियो दिया है या फिर नाम शेड्यूल वगैरह दिया है, क्या दिया है? एक्चुअली क्या हुआ उनका जो भी भेजा है वो सारे नाम और उनका ट्रांजैक्शंस अभी भी बाहर आना है, तो पर अभी तो हमको पता है कि शिप्स का नाम भेजा गया है। सर सिर्फ शिप के नाम गए हैं या जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी है उनके भी नाम फोटोग्राफ उनकी फैमिली के रिलेटेड एज ऑफ नाउ ऐसा माहिती हमारे पास नहीं हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हमको पता सर सामने वाला जो व्यक्ति था उससे इसकी टेलीफोनिक कभी बात हुई है कि नहीं? नहीं, एज ऑफ नाउ अगेन मैं अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि इन दोनों के बीच में बात हुई है, पर हाँ व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस कॉल का है कि क्या एग्जैक्टली बात करते थे अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा फर्स्ट किस तरह से कांटेक्ट किया गया करते हैं? है। ये एक्चुअली फेसबुक के थ्रू परिचय हुए थे, फेसबुक के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बात करना शुरू किया। સર રિયા ત્યાં કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કર્યો હોય કોન્ટેક્ટ સિવાય એ કોઈ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે કેમ? उसके फेसबुक रिजॉल्व करने का हमारे पास है, पर डेटा जब आएगा और दूसरे इंडियन कॉन्टैक्ट्स के वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ये जो कांटेक्ट नंबर यूज करते थे वो इंडियन नंबर था कि पाकिस्तानी? बिल्कुल, वो जो इंडियन नंबर के साथ ही एसोसिएटेड था जो व्हाट्सएप के थ्रू था। सर इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? बस स्कूलिंग ही किया था, सैलरी सर नहीं नॉर्मल तंबाकू एम्प्लॉय था, मजदूर था। સર તો ભારતીય નંબર જે રિયા પાસે હતો એ ક્યાંથી મેળવ્યો કેવી રીતે ये अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो सिम कार्ड है वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू सर ये पहले से पोरबंदर में रहता है? ये पहले से पोरबंदर। थैंक यू।